تو یہ جو آپ کی فوج ہے، اس کے جو افسر ہیں، اس کے جو جوان ہیں، یہ اس ملک کا اشرافیہ تو نہیں ہے، یہ تو وہ گلدستہ ہے جو کہ متوسط اور غریب طبقوں کا ہے۔ تو یہ جاننے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی فوج ہے، یہ کسی خاص ایک سیاسی سوچ، ایک زاویے، ایک گروپ، ایک پارٹی، ایک مذہب، ایک مسلک، اس کو تو لے کے نہیں چل رہی نا، یہ تو پاکستان کو اور پاکستان کی ترقی کو لے کے چل رہی ہے۔ جو افسر، جو جوان، جو ادارہ اپنی جان دینے کو تیار ہے، تو اگر اس کو حکومت وقت قانون کے مطابق کوئی کام دے جس میں پاکستان کا فائدہ ہو، تو وہ کیوں پیچھے ہٹے؟ 9 مئی پر فوج کا موقف بہت واضح ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ آئے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، کہا ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف پہلی دفاعی لائن قانون ہے۔ قانون ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف اس طرح کام نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ بے ضمیر لوگ چند پیسوں کے لیے ملک، عوام اور اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کوئی افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا تو فوج پوری کارروائی کرے گی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور ان کی نام نہاد قیادت کا دشمن سے گٹھ جوڑ ہے، گوادر میں چلے جائیں، وہاں آپ کو حکومت کی رٹ ملے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز کانفرنس، بولے حکومت بلوچستان نے کہا پرامن احتجاج آپ کا حق ہے، آپ سڑکیں بلاک نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سڑکیں بلاک کریں گے، آپ نے دیکھا انہوں نے آگ بھی لگائی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور اس کی نام نہاد قیادت دہشت گرد تنظیموں اور جرائم پیشہ مافیا کی ایک پراکسی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی دہشت گردوں کی پراکسی کے سوا کچھ نہیں۔ اسمگلنگ سے متعلق سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا بلوچستان کے ایرانی سرحد سے متصل علاقوں میں بنیادی سہولیات اور روزگار کی کمی ہے۔ بلوچستان کے ان علاقوں کے لوگوں کا انحصار ایران سے تجارت پر ہے۔ اگر ایرانی سرحد مکمل بند کر دیں تو مافیا کو فوج کے خلاف بات کرنے کا موقع ملے گا۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ افواج پاکستان حق خود ارادیت کی جدوجہد میں کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ رواں سال دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف 23,622 آپریشن کیے گئے۔ حکومت پاکستان نے 2 دہشت گرد تنظیموں پر پابندی لگائی ہے۔ کل عدم ٹی ٹی پی کو فتنہ الخارج کے نام سے نوٹیفائی کر دیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا افواج پاکستان کی توجہ خیبر پختونخوا کے ضم شدہ قبائلی اضلاع اور بلوچستان کے متاثرہ علاقوں پر ہے۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کو بھارت نواز پالیسی لے ڈوبی۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد نے عوامی دباؤ پر استعفیٰ دے دیا۔ حسینہ واجد فوجی ہیلی کاپٹر میں بھارت فرار۔ مظاہرین حسینہ واجد کی سرکاری رہائش گاہ میں داخل ہو گئے۔ حسینہ واجد نے ملک چھوڑنے سے قبل تقریر ریکارڈ کرانے کی کوشش کی جسے ناکام بنا دیا گیا۔ بنگلہ دیش میں 1 ماہ سے جاری مظاہروں میں 300 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ طلباء سرکاری ملازمتوں میں متنازع کوٹا سسٹم ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ طلباء نے آج ڈھاکہ کی طرف مارچ کی کال دی تھی۔ فوج نے حسینہ واجد کو مستعفی ہونے کے لیے 45 منٹ کی مہلت دی۔ بنگلہ دیش کی سڑکوں پر جشن کا سما، حسینہ واجد کے خلاف نعرے بازی۔ شیخ حسینہ واجد نے استعفیٰ دے دیا۔ عبوری حکومت ملک چلائے گی۔ بنگلہ دیشی آرمی چیف وقار الزمان کا قوم سے خطاب، کہا عبوری حکومت کے قیام کے لیے عوامی لیگ کے سوا تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت ہوئی ہے۔ طلباء پرامن رہیں اور اپنے گھروں کو واپس جائیں۔ عوام صبر کا مظاہرہ کریں اور املاک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ پرتشدد واقعات اور املاک کو نقصان پہنچانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ عوام کا ایک ایک مطالبہ تسلیم کیا جائے گا۔ آج رات تک مسائل کا حل تلاش کر لیں گے۔ آرمی چیف کا گزشتہ ہفتوں میں ہونے والی ہلاکتوں کی تحقیقات کا اعلان، کہا بنگلہ دیش میں اب تک جو کچھ بھی غلط ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ بہانے پی ٹی آئی نے فوج کے ساتھ بہتر تعلقات نہ رکھنے کو حماقت قرار دے دیا۔ ایک بار پھر کہا کہ وہ فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن انتخابات میں اکثریت تسلیم کرنے تک حکومت یا فوج سے عدالت کے باہر کوئی تصفیہ نہ کرنے پر بھی پاسد۔ بولے ہم ایسے تمام مذاکرات کے لیے تیار ہیں جو ملک کی بگڑتی صورتحال کو بہتر کر سکیں۔ شہباز حکومت سے ایسی بات چیت کرنے کا فائدہ نہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ امریکہ کے خلاف کوئی رنجش نہیں۔ حکومت کے خاتمے کے بعد انہوں نے فوج پر بطور ادارے تنقید نہیں کی۔ فوجی قیادت کے حوالے سے غلط فہمیوں کو پورے ادارے کے خلاف نہیں ٹھہرانا چاہیے۔
सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने बानी पीटीआई को इक़्तिदार का मंगता करार दे दिया। कहा, इदारों पर हमलों के मंसूबा साज ने झूठ बोलकर 4 साल अवाम को गलत फहमियों का शिकार बनाया। कभी साइफर लहराकर तो कभी अमेरिका का नाम लेकर कौम को बेवकूफ़ बनाया। बानी पीटीआई अब खुद बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं। सब इनकी असलियत समझ चुके हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि बहरूपिया एनआरओ की भीख मांग रहा है जो नहीं मिलना। रो, चीखो या पीटो, एनआरओ नहीं मिलना। तुम्हारे खिलाफ केस खत्म नहीं होंगे, जवाब देना पड़ेगा। 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों के हुकूक को गज़ब किया गया। कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर को कानून साज असम्बली से खिताब। कहा, आर्टिकल 370 मंसूख करके गैर रियासती बाशिंदों की मकबूजा कश्मीर आबादकारी की राह हमवार की गई। जब तक कश्मीरियों को हुकूक नहीं मिल जाते, पाकिस्तान हिमायत जारी रखेगा। एक वक्त आएगा कि भारत और इसराइल को जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। कश्मीर की आज़ादी के लिए कुर्बानियां देने वालों को खराज अकीदत पेश करते हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और एक दिन ज़रूर पाकिस्तान में शामिल होगा। भारत की खामख्याली है कि वो मकबूज़े कश्मीर के अवाम का हक़ खुद इरादियत ख़त्म कर देगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का दफ्तर ख़ारजा की रैली से खिताब। कहा, भारत का मकबूज़ा कश्मीर से मुतल्लिक़ फ़ैसला दुनिया को कबूल नहीं। हिंदुस्तान के नापाक अज़ाइम है कि मकबूज़े कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदल दे। इसाक़ डार ने कहा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत दुनिया भर में कश्मीरी अवाम का मुकदमा लड़ रही है। हमने गज़ा और कश्मीर का मुकदमा पूरी दुनिया में भरपूर तरीके से उठाया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कराची में रैली। कश्मीरी आवाम से इज़हार यकजहती और भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारेबाजी। स्कूल तालिबात की कश्मीरी परचम उठाया रैली में शिरकत। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने कहा, आज तारीख का स्याह तरीन दिन है। कश्मीरी 7 दहाइयों से कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कश्मीरी अपनी जिदोजहद आज़ादी के लिए हमेशा सरगर्म रहे। जंगें कश्मीर की वजह से हुई हैं। कश्मीर का मसला हल होगा तो खित्ते में अमन आएगा। बाग में भी कश्मीरियों की यौम इस्तेहसाल के मौके पर रैली का इनेकाद। शुरका ने हाथों में भारत मुखालिफ बैनर्स उठा रखे थे। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ट्रैफिक भी रोक दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मुलाकात। भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम की भरपूर मज़म्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, गुज़श्ता 5 बरस से मकबूजा जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी कर रहा है। आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा करके कश्मीरियों का बदतरीन इस्तेहसाल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम जम्मू कश्मीर के तनाज़े के हल से मशरूत है। भारत 5 अगस्त 2019 से अब तक बैनुल अक़वामी कानून कश्मीरी अवाम की उमंगों की मुकम्मल बेतौकीरी करता आ रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम इस्तेहसाल पर पैगाम। कहा, भारत की दाखिली कानूनी साजी और अदालती फैसले कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जद्दोजहद को दबा नहीं सकते। आलमी बरादरी भारत पर जोर दे रही है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज का दिन पूरी पाकिस्तानी कौम और हुकूमत को यौम इस्तेहसाल के तारीख दिन की याद दिलाता है। जनूबी एशिया में पायदार अमन और सलामती के हसूल के लिए भारत को हर हाल में तनाज़ात के हल की तरफ बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक बोले कि मकबूजा कश्मीर पर भारत का कब्जा एक बड़े इंसानी बहरान और अलमिये में तब्दील हो चुका है। इंसानी तारीख के बदतरीन मज़ालिम सहने के बाद भी कश्मीरी अवाम के हौसले बुलंद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवाने के लिए अमली करारदाद अदा करे। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 11वें रोज़ भी जारी। हुकूमत से मुज़ाकराती अमल में ताहाल कोई पेशरफ नहीं हो सकी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ तैमूर रहमान कहते हैं कि IBP से मुआहिदों ने मुल्क को मुआशी तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। शुरका का कहना है कि हुकूमत को मुतालिबात मानना होंगे। क़यादत के अगले लाहे अमल के मुंतज़िर हैं। वज़ीर
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पावर सेक्टर इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स तश्कील देने की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी टास्क फोर्स के चेयरमैन होंगे। नेपरा, CPPA, PPIB और SCCP के अरकान शामिल होंगे। टास्क फोर्स 1 माह के अंदर अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेगी। IPPs की कैपेसिटी चार्जेस पेमेंट्स में कमी से मुतल्लिक तजावीज़ भी ज़ेर गौर आएंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं फॉर्म 47 की हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया किया है। नून लीग ने हमेशा मुल्क को बहरानों में धकेला, मईशत तबाह करके मुल्क IMF के रहमो करम पर छोड़ दिया। नून लीग ने IPPs को अवाम पर मुसल्लत किया। बिजली के ज़्यादा बिल्स की वजह से अवाम खुदकुशियाँ कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मैंडेट चोरों से छुटकारा हासिल करने के लिए इलेक्शन वाहिद हल है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में आज सवाबी का जलसा जाली हुकूमत के खिलाफ अहम संग मील साबित होगा। बानी PTI की रिहाई के बगैर मुल्क की तरक्की नामुमकिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज सवाबी में अवामी ताकत का मुजाहरा कर रही है। शाह मंसूर टाउन में जलसे के इंतजामात मुकम्मल, स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गईं, जलसागाह में लाइट्स भी नस्ब। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर जलसे से खिताब करेंगे। महमूद खान अचकज़ई, बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, असगैसर कारकुनों का लहू गरमाएंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम की जदीद बुनियादों पर तामीर नो मोहसिन नकवी के सर जाता है। वज़ीर आज़म का कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की तामीर नो का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा क्रिकेट टीम की दोबारा तश्कीलें नो करें, सिर्फ मेरिट पर खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाए। मेरिट के खिलाफ वज़ीर आज़म भी सिफारिश करे तो ना माने। क्रिकेट टीम की तश्कीलें नो मोहसिन नकवी की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में तब्दीली की कोई ज़रूरत नहीं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और एडवाइज़र वकार यूनिस की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बुरा नहीं। चीफ सिलेक्टर खिलाड़ियों का इंतखाब मेरिट पर करें। डोमेस्टिक चैंपियन कप हर साल होगा। खिलाड़ियों के मुआवजों और मैच फीस में इजाफा कर दिया। कैटेगरी 1 के खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए मिलेंगे। चैंपियंस कप में इंटरनेशनल खिलाड़ियों भी खेलेंगे। कराची में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। शहर फैसल, कोरंगी, मलीर एयरपोर्ट और गिरदोनवा में बादल बरस पड़े। शहर कायद के इलाके लियारी और चाकीवाड़ा में मकानों की छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। महकमे मौसमियात के सिंध भर में अगस्त में मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेशगोई। सूबे भर में शदीद बारिशों के बायस नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। सिब्बी और गिरदोनवा में होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस दरियाए नाड़ी केनाल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नाड़ी केनाल के इर्द गिर्द के मकीनों को अलर्ट जारी। सिब्बी के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में हेल्पलाइन और फ्लड कंट्रोल रूम कायम। तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। मुख्तलिफ इलाकों में लोगों के घरों और सड़कों से निकासी आप का काम भी जारी। सैलाब के बायस बंद होने वाली क्वेटा सिब्बी कौमी शहरा बहाल। बोलान में सफ़र करने से पहले शहरियों से कंट्रोल रूम से रब्ता करने की हिदायत। तालीमी मैदान में अल रहमान डेवलपर्स का बड़ा इकदाम। जफरवाल जैसे पसमानदा इलाके में दी लाहौर सिटी कॉलेज के जरिए इल्म की शमा रोशन कर दी। दी लाहौर सिटी कॉलेज में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के 500 तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। दही इलाके में बच्चों के इंटर तक बैनुल अक़वामी मयार की दरसगाह को 1 साल के कलील अरसे में तैयार किया गया। यहाँ पर तालिब इल्मों को वो तमाम तर सहूलियात हासिल होंगी जो मुल्क के नामी गरामी तालीमी इदारों में मुहैया हैं। यहाँ से फारिगुल तहसील हर तालिब इल्म ये बताने में फख्र महसूस करेगा कि उसका एतमाद और शौक दी लाहौर सिटी कॉलेज जफरवार का मरहून मिन्नत है। तालीम के अंदर, मईशत के अंदर तरक्की तब होती है कि जब हुकूमत और निजी शोबा पैर से पैर और कदम से कदम मिलाकर आगे रास्ता बनाए।
जो कौम फसाद और इंतशार का शिकार हो जाती है वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का जफरवाल में दी लाहौर सिटी कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को चलने दिया जाए तो मुल्क की तकदीर बदल सकती है। अमन, इस्तेहकाम, पॉलिसियों के तसलसल और मुसलसल इस्लाहात से ही तरक्की हासिल की जा सकती है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि मियां मुश्ताक जैसे हीरे मौजूद होंगे तो यकीन है कि कौम की तरक्की के सफर में कोई रुकावट हायल नहीं हो सकती। पंजाब में अब 5 मरला ही नहीं 4 और 3 मरला घरों पर भी टैक्स लगेगा। महकमा एक्साइज ने प्रॉपर्टी टैक्स का दायरा कार बढ़ाने का फैसला कर लिया। प्रॉपर्टी टैक्स रकबे की बजाय मलकियत पर लगेगा। मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर रेट के मुताबिक टैक्स आयद होगा। 1 जनवरी 2025 से 50 लाख से ज्यादा मालियत के घरों पर 0.07% टैक्स आयद होगा। पब्लिक न्यूज ने 27 अप्रैल को घरों पर टैक्स छूट खत्म करने की खबर दी थी।